Good afternoon, everyone. So we were dealing with the chapter number 2, money, right? We understood the money is anything which does the function of money, anything which does the function of the money, which acts as a money means, right? Money is what money does is a definition given by Professor Walker. That definition is quite famous. Anything which will serve the purpose of medium of exchange, which will have general acceptability, which can help you to store the value over a period of time, is called as money. So before money actually comes into picture, there's a barter system, means exchange of goods for goods. There were some difficulties with respect to barter system, like double coincidence of want. If you have to carry out a transaction, carry out a exchange, in case of barter system, there should be presence of double coincidence of want, and such thing was very rare. जैसे मैंने पहले ही बोला था, if I want commodity X and I have commodity Y, so obviously मैं जिससे X purchase करने वाला हूँ, he must also require commodity Y, then only the transaction can take place, because I can take X from him and I will give him Y to him. But if it does not require commodity Y which is with me, then the transaction will not take place. So जो मुझे चाहिए वो उसके पास होना चाहिए, एंड उसको जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तो ही ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता. वो मनी के केस में नहीं होता है. लाइक एग्जांपल, आई परचेस ए कमोडिटी इन ए मार्केट टुडे. मुझे कमोडिटी चाहिए, आई गिव हिम मनी. विद दैट मनी ही बाय समथिंग एल्स. मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का कोई जरूरत नहीं है. मुझे जो चाहिए उसके पास है, आई कैन टेक हिम और आई विल गिव हिम मनी. उसको जो चाहिए उसी मनी से ही कैन बाय इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिक्वायर कमोडिटी एक्स, he must also require commodity y which is with me, because I'm going to exchange y for x. तो मैं y देख के x लेने वाला, उसको y की जरूरत होनी चाहिए, तो ही वो ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं. सो लैक ऑफ और प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट is a major drawback of the barter system. Second was lack of common measure of value. Yes, like today all the goods and services are measured in terms of money, rupees in India, dollars in US. Like, so money mein all goods and services are measured. In barter system it is very difficult to measure those goods and services in right things, specific things. I cannot tell you one mobile is equal to how many meters of cloth or how many like liters of oil. I cannot tell you exactly. Try to understand. So common measure of value was right the problem. Difficulties in the storage of goods. I need to store the goods so that I can exchange them for whatever I want in the future. So to store the goods, it requires a lot of carrying cost. It requires space. At the same time, I need to take them to the place where I want to exchange them. It is very difficult. It is easy to carry rupees 5 lakhs than to carry the goods of rupees 5 lakhs. Try to understand. So barter system में you have to store the goods, you have to carry those goods. It is very difficult. Difficulties in storage of goods. And जो goods perishable होते हैं वो कैसे store करोगे? चलो ड्यूरेबल गुड्स तो स्टोर हो जाएंगे. अगर आपको स्टोरेज कैपेसिटी इज नॉट ए रिस्ट्रेन, इज नॉट ए प्रॉब्लम, तो आप ड्यूरेबल गुड्स स्टोर कर सकते हो, सो दैट यू कैन बाय समथिंग इन द फ्यूचर बाय एक्सचेंजिंग दोस ड्यूरेबल गुड्स. बट व्हाट अबाउट द पेरिशेबल गुड्स, लाइक एग्जांपल फिश, राइट, मिल्क, वेजिटेबल्स, वो कैसे स्टोर करोगे? सो दैट इज अ प्रॉब्लम. इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो गुड्स हम बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने वाले, दे सम मैक्सिमम ऑफ गुड्स आर नॉट डिविजिबल. लाइक एग्जांपल, आई कैन नॉट डिवाइड द एनिमल.
That is not possible. If I had to exchange goat for some other animal, yes, some like I have goat and I want to buy rice. In that case, right, I cannot divide my goat. I can divide the rice, but I cannot divide the goat. Try to understand. So, indivisibility of certain goods was a problem. And the last problem was problem of making deferred payment. Deferred payment means the future payments. Like you have borrowed money today and you have to make the payment in the future. हम उसको deferred payment बोलते हैं. Right? Future payments. So try to understand जो गुड्स आज आप फ्यूचर में देने वाले हो, द साइज में चेंज, द शेप में चेंज, द क्वालिटी में चेंज. सो जो गुड्स आज के वो फ्यूचर में अगर आप उनको सेटल करने वाले हो बाय आप एक्सचेंज करने हो फ्यूचर में, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो बार्टर ट्रांजैक्शंस में लाइक आप डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अगर आपने डिसाइड किया कि आई हैव परचेज समथिंग फ्रॉम हिम टुडे एंड मैं उसको बोलता हूं कि आफ्टर 1 year आई विल गिव यू 10 गोट्स. जो गोट्स आज है उनकी साइज राइट चेंज हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द ईयर. सो जिस टर्म्स पे आज मैंने एग्री किया, जब मैं एक्सचेंज करने जाऊंगा तो जो गुड्स में एक्सचेंज करने वाला हूं दे वोंट बी द सेम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये प्रॉब्लम आता है एट द राइट फॉर द डेफर्ड पेमेंट. सो problem of double coincidence of want, then lack of common measure of value, difficulties in storage of goods, indivisible nature of the goods, and problem of making deferred payments. So barter transactions is not the solution, or exchange of goods for goods is not a solution. जो मेरे पास से मैं एक्सचेंज करूंगा जो तेरे पास है ये काम नहीं चलेगा. एंड देयरफॉर देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ द मनी. सबसे पहले आगे एनिमल मनी. एनिमल मनी मींस एनिमल्स, ए कॉमन एनिमल इन दैट एरिया. एग्जांपल हॉर्स इज ए कॉमन, देन हॉर्स. गोट इज ए कॉमन इन दैट एरिया, देन गोट will be used in the exchange. Whatever you want to buy will be exchanged for goat. You want rice, exchange for the goat. You want wheat, exchange for the goat. You want to buy house, you can exchange it with the goat. Example. So goats will be used, या particular animal will be used in the exchange. जैसे हम rupees यूज करते हैं वैसे replace rupees with the animal. So right, animal money, animals are used as a means of exchange like cow, sheep, goat, etc. However, due to their indivisible nature, commodity money came into picture. So animal money के बाद आ गया कमोडिटी मनी. बिकॉज एनिमल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते बट कमोडिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हाट इज अ कमोडिटी मनी? एनी कॉमन कमोडिटी इन दैट एरिया विल बी यूज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जांपल अगर आप सी शोर एरियाज में हो तो इन दैट केस राइट शेल्स विल बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एग्जांपल दे रहा हूं मैं. या कोकोनट्स विल बी यूज्ड इन द as a medium of exchange because वो common है. Try to understand. So any commodity which is very common will be used in the exchange. Whatever you want to buy, you can exchange with that commodity. So that is a commodity money. So वही लिखा है देखो, right? क्या लिखा है उन्होंने? Like animal skin, grains, shells, tusk, salt, rare articles and stones were used as a medium of exchange. Due to problem of storage of such commodities, metallic money came into picture. ये जो हमने commodity को like money बोल दिया, उसका storage was a problem. इसलिए फिर हमने क्या किया कि देखो एनिमल में प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी का था, तो हम डिविजिबल कैसे कर सकते, कमोडिटी को डिविजिबल कर सकते, इसलिए कमोडिटी पे शिफ्ट हो गए. हमने कमोडिटी को यूज करना स्टार्ट कर दिया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बट प्रॉब्लम क्या आने लगा, कमोडिटी को स्टोर करना प्रॉब्लम आने लगा. तो फिर हमने क्या किया कि हमें स्टोर करना चाहिए, राइट? लॉन्ग डिवाइड भी होना चाहिए, स्टोर भी होना चाहिए, राइट? सो लाइक वहां पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. इसलिए हमने क्या किया, मेटल्स पे शिफ्ट हो गए. एंड देन कम इनटू पिक्चर मेटेलिक मनी.
metallic money came into picture, right, in which the metals were used as a medium of exchange. Like metallic money used durable metals such as gold, silver, copper, aluminum, nickel. However, scarcity of the precious metal and lack of uniformity in metallic prices gave rise to the use of metallic coins. हमने metals को use करना start कर दिया, but the prices of metals keeps on fluctuating. Gold की price daily change होती है, silver की price daily change होती है, purity change होती है. There can be fraud अगर आप as it is गोल्ड एक्सेप्ट करोगे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज प्योरिटी अलग अलग रहती है, यू नो, कैरेट्स. सो ये समझना उतना इंपॉर्टेंट है कि हमने मेटल्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, बट द प्रॉब्लम वाज द प्राइसेस वर चेंजिंग, राइट. दे वर नॉट यूनिफॉर्म नहीं थे. तो हमने क्या किया, उन्हीं मेटल से कॉइन्स बना दिए. सो बन गया मेटलिक कॉइन्स. सो हमने क्या किया, वी इम्बॉस्ड सम वैल्यू ऑन दोस कॉइन्स. Like example, today we use coins made of nickel or you can say aluminium. उस पे क्या करते हैं, उस मेटल को हम कॉइन्स में कन्वर्ट करते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, इम्बॉस करते हैं, इम्प्रिंट करते हैं द वैल्यू. सो देयर कम्स द मेटेलिक कॉइन्स. मेटेलिक कॉइन्स में हमने मेटल को कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया, तो साइज सेम रहेगी, प्योरिटी भी सेम रहेगी, राइट. दूसरी बात, मतलब उस कॉइन की वैल्यू वो मेटल की वैल्यू नहीं होगी, उस पे जो लिखा है ना वो वैल्यू रहेगी. एंड देयरफॉर मेटलिक कॉइन्स में दो काइंड्स के कॉइन्स होते हैं. एक होते हैं स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स एंड दूसरे होते हैं टोकन कॉइन्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी मेटलिक कॉइन अगर आप देते हो, देयर आर टू वैल्यूज टू दैट. हर चीज के दो वैल्यूज होते हैं. कोई भी चीज ले लो, उसके दो वैल्यूज होते हैं. एक उस पे जो लिखी है वो, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, एंड दूसरी उसकी एक्चुअल वैल्यू. मतलब अगर मैं कोई मेटल लेता हूं, एग्जांपल मैंने कोई मेटल ले लिया एंड उस मेटल पे मैंने 100 रुपीज लिख लिया, इसका मतलब वो जो 100 रुपीज लिखा है दैट बिकम द फेस वैल्यू. बट अगर उस मेटल को मेल्ट करके, उस कॉइन को मेल्ट करके अगर उस मेटल की एक्चुअल वैल्यू देखी जाए, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू. Intrinsic value is the value of the metal. Intrinsic value is the value of the metal of which that coin is made of. And face value is the value embossed on that coin. So 1 रुपए का कॉइन है, उसपे 1 रुपए लिखा है. जो 1 रुपए लिखा है इसलिए हम उसको 1 रुपए बोलते हैं. अगर उसमें 2 रुपए लिखा होगा तो 2 रुपए बोलेंगे. अगर उसके 10 लिखा होगा तो हम 10 रुपए बोलेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसपे जो लिखा है वो फेस वैल्यू है. एंड अगर उसी कॉइन को ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम मेल्ट करते हैं एंड अगर वो मेटल हम मार्केट में सेल करते तो कितना मिलेगा, वो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू. अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. जब गोल्ड कॉइन्स, जब पहले किंग्स यूज्ड टू यूज गोल्ड कॉइन्स, तो वो क्या करते थे, गोल्ड को कॉइन्स में कन्वर्ट करते थे. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन देयर केस सपोज उन्होंने 40,000 रुपीज का गोल्ड यूज किया है टू मिंट दैट कॉइन, तो उस कॉइन की वैल्यू 1 रुपए नहीं होगी, 10 रुपए नहीं होगी, उसकी वैल्यू 40,000 ही होगी. अगर ऐसे करते हो, ध्यान देना, अगर आपने 40,000 के गोल्ड का एक कॉइन बनाया और उसके 10 रुपए लिख दिए, तो लोग क्या करेंगे पता है, वो उस कॉइन को मेल्ट करेंगे और उसको गोल्ड में कन्वर्ट, उसको कॉइन नहीं रखेंगे, उसको फिर मेटल में कन्वर्ट करेंगे और 40,000 में सेल करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी जो आप कॉइन्स देखते हो ना, वो जो मेटल की एक्चुअल वैल्यू है, इट इज वेरी लेस. उसकी मेटल की वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू प्रिंटेड ऑन दैट और इम्बॉस्ड ऑन दैट. 1 रुपए का कॉइन जो होता है ना, उसमें 1 रुपए लिखा होता है, 1 लिखा होता है, बट वो जो मेटल है ना, उसकी सम पैसे वैल्यू होती है. मतलब लोग उल्टा नहीं करेंगे, मतलब कि लोग उसको मेल्ट करके 1 रुपए से ज्यादा मार्केट में सेल नहीं कर सकते. अगर आप उसको मेल्ट भी करोगे, उसकी वैल्यू इन सम पैसे रहेगी. सो इसलिए लोग उसको कॉइन बोल के यूज करते हैं, हमेशा याद रखना. इसलिए गोल्ड के केस में अगर आप हाई वैल्यू प्रीसियस मेटल्स के कॉइन्स बनाते हो, गोल्ड, सिल्वर एग्जांपल, तो उस गोल्ड की जो वैल्यू है, वो मेटल करने के लिए जो वैल्यू का जो गोल्ड यूज हुआ है, वही वैल्यू का हम उसको क्या करते हैं, कॉइन को वैल्यू देते हैं. अगर हमने 40,000 रुपीज का गोल्ड यूज करके 100 रुपीज का कॉइन कर दिया, लोग उसको कॉइन बोल के यूज नहीं करेंगे, लोग उस
कॉइन को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे और फिर 40,000 में सेल करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उल्टा नहीं होगा. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर क्या होता है, जिस मेटल से हम कॉइन्स बनाते हैं ना, उस मेटल की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की उसकी फेस वैल्यू रख देते हैं. तो देयर इज नो इंसेंटिव कि उसको मेटल में कन्वर्ट करो. वही होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइन्स, स्टैंडर्ड कॉइन्स और फुल बॉडीड कॉइन्स एंड द फेस वैल्यू ऑफ टोकन कॉइन्स. जहां पे लाइक कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दे आर स्टैंडर्ड कॉइन्स, और फुल बॉडीड कॉइन्स मतलब उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू देयर फेस वैल्यू. अगर 40,000 रुपीज का गोल्ड यूज करके आपने कॉइन बनाया तो उसकी वैल्यू भी 40,000 ही रहेगी. सो फेस वैल्यू इज 40,000, द इंट्रिंसिक वैल्यू इज आल्सो 40,000. उस कॉइन को हम बोलेंगे फुल बॉडीड कॉइन और स्टैंडर्ड कॉइन्स. टुडे नो कंट्री यूजेस सच कॉइन्स. पहले जो किंग्स थे, right, they used to use such coins, but they have been, right, you can see they have been used by the kings. Today no government uses such coins. So full bodied coins are those whose face value is equal to their intrinsic value. Fe is equal to iv. Face value indicates the exchange value fixed by the issuing authority. उस पे जो आपने प्रिंट किया, उस पे आपने जो लिखा है, इम्बॉस किया है, वो हो गई उसकी फेस वैल्यू. These coins are made out of the precious metals like gold, silver, etc. Standard coins were used by some days during the British period. What are the token coins? जो हम आजकल यूज करते हैं टोकन कॉइन्स होते हैं. उनके केस में the face value is more than its intrinsic value. Those coins, token coins are those whose face value is higher than the intrinsic value, right? These coins are made of a cheaper metals like aluminum, nickel, etc. These coins are of lower denomination and are generally used for settling the smaller transactions. In India, all coins in the circulation today are token coins. So always remember, compare the face value. This is face value and intrinsic value. If face value is equal to intrinsic value, ये हो गए टोकन, ये हो गए स्टैंडर्ड कॉइन्स, ये हो गए स्टैंडर्ड कॉइन्स. ये प्रीसियस मेटल्स के होते हैं. एंड दूसरे होते हैं इफ फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू. इनको हम बोलते हैं टोकन कॉइन्स. ये होते हैं चीपर मेटल्स के लाइक एल्यूमिनियम, निकल. सर उल्टा नहीं हो सकता कि मैंने पहले ही बोला. अगर फेस वैल्यू इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर ऐसे कोई कॉइन्स बनाते हो तो लोग उसको कॉइन बोल के नहीं यूज करेंगे, उसको मेटल बोल के यूज करेंगे और मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देंगे. एक्सचेंज में नहीं यूज करेंगे, उसको मेटल में कन्वर्ट करके सेल करना स्टार्ट करेंगे. इसलिए वैसे कंडीशन नहीं होती. आगे ठीक है. फिर आगे आपका द प्रॉब्लम विद द मेटलिक कॉइन्स वाज स्टोरेज एंड द कैरेज. इफ यू हैव टू कैरी 1 लाख रुपीज एंड आप एक एक रुपए के कॉइन्स कैरी करते हो तो यू कैन इमेजिन कितना प्रॉब्लम होगा. हाउएवर अगर भाई आप करेंसी नोट्स लेके चलते हो 2000 के तो इट इज मोर इजी. इसलिए पेपर मनी आ गया. द प्रॉब्लम विद द मेटलिक मनी वाज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेटल्स इतने भी इजीली अवेलेबल नहीं होते. दूसरी बात, राइट, उन मेटलिक मनी को या मेटलिक कॉइन को ट्रांसफर करना भी डिफिकल्टी है, स्टोरेज करना भी डिफिकल्टी है. इसलिए आ गए पेपर मनी. तो उसमें क्या किया, पेपर मनी मतलब करेंसी नोट्स. हमने करेंसी नोट्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. पेपर मनी वाज ए सब्स्टिट्यूट टू मेटलिक मनी. In the course of time, issue of the currency notes was monopolized by the central bank. India में central bank is RBI. Paper money consists of paper currency issued by government and the central bank of the country. Like in India, rupee 1 note. In India, rupee 1 note and all coins are issued by finance ministry, Ministry of Finance. 1 रुपए की नोट प्रिंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, and all coins are minted by Ministry of Finance.
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. ऑन द कॉन्ट्री, ऑल करेंसी नोट्स अदर देन 1 रुपी, 1 रुपी की करेंसी नोट छोड़ के बाकी सब करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय आरबीआई. तो उन्होंने वो फंक्शन डिवाइड करके लिया है. ठीक है. इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Currency notes of higher denominations are issued by Reserve Bank of India. Inconvenience in handling and risk of storing paper money gave rise to the bank money. हमने यहां तक किया था. ठीक है. करेंसी नोट्स को कैरी करना राइट रिस्की होता है, इसलिए आ गया बैंक मनी और क्रेडिट मनी. मतलब हम बैंक में पैसा रखते हैं और हम अकाउंट्स ओपन करते हैं. इट मे बी सेविंग्स अकाउंट, इट मे बी करंट अकाउंट, राइट. एंड हम थ्रू बाय द इश्यू ऑफ द चेक्स by RTGS, IMPS, right, NEFT, we can transfer the funds, we can make the payment or we can receive the payment. ठीक है. That is bank money or currency, credit money, sorry, bank money or credit money. Bank money refers to deposits which are in the form of cash saved by the people. Deposits with the bank. Banks में deposits होते हैं. Savings account, current account, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. इससे 4 टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं. एक सेविंग्स डिपॉजिट, सेविंग्स. दूसरा होता है करंट. बिजनेसेस ओपन करंट अकाउंट विद द बैंक, एफडी एंड आरडी. सो लोग ये जो पैसे रखते हैं बैंक में, दैट इज कॉल्ड एज बैंक मनी. बैंक मनी रेफर्स टू द डिपॉजिट्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल. It is used to create the credit money. मतलब बैंक क्या करती है, बैंक ट्रांसफर दैट मनी. ठीक है. These can be withdrawable or transferable demand by means of check और डिमांड ड्राफ्ट. जनरली हम इन दोनों को लेना चाहिए बैंक मनी में, बिकॉज एफडी एंड आरडी आप एक बार पैसे डालते हो तो जनरली एक फिक्स पीरियड के लिए होते हैं, आप निकाल नहीं सकते. बट सेविंग्स एंड करंट में यू कैन डिपॉजिट एन नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन विड्रॉ एन नंबर ऑफ टाइम्स. सेविंग्स में देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल, बट उतने भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. मैं बोल रहा हूं कि आपको जब चाहिए तब पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहिए पैसे विड्रॉ कर सकते हो बाय मींस ऑफ चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट. राइट. चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल. अगर मैंने किसी से गुड्स परचेस किया तो मैं उसको करेंसी नोट्स नहीं देता, मैं उसको टोकन कॉइन्स नहीं देता, मतलब मेटलिक कॉइन्स नहीं देता, मैं उसको चेक इश्यू करता हूं. चेक एज सच इज नॉट ए मनी बट इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. मैं उसको पैसे देता हूं तो उसको उसके बैंक में पैसे डालने होंगे, तो मेरे बैंक से उसके अकाउंट में अपने आप पैसा ट्रांसफर होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी, करेंसी नोट्स नहीं है वो, बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स फ्रॉम माय अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू the deposit account of the my seller. ठीक है. क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आजकल हर चीज ऑलमोस्ट चेक के थ्रू होती है, राइट. ऑन बैकग्राउंड ऑफ ए ग्लोबल इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजैक्शंस गेन्ड इंपॉर्टेंस, thereby giving rise to the plastic money. Now comes the plastic money. प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. आजकल पेट्रोल कार्ड भी मिलते हैं, आपको पता होगा. आपको क्या करना होता है, एक पेट्रोल कार्ड मतलब आप एक कार्ड निकालते हो. सपोज आपने इंडियन ऑयल से कार्ड ले लिया, आपने उनके पास 10,000 रुपए डाल दिए, तो आपका बैलेंस बन गया 10,000. आप वो इंडियन ऑयल के कार्ड, यहाँ पे आप वो कार्ड स्वैप कर सकते हो, आपके अकाउंट में 10,000 का बैलेंस कम होता जाएगा. देयर इज लाइक आपने टोल भी पेड किया होगा. आजकल टोल का एक कार्ड आता है, देखो, राइट. वो स्कैन होता है, अपने आप आपके अकाउंट से टोल के चार्जेस कट होते हैं. सो आप उनको प्लास्टिक मनी की तरह देख सकते हो, कार्ड्स. ठीक है. प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजैक्शंस ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी. डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स are used as a plastic money. Further, innovation in the smart transactions led to introduction of the electronic money. आजकल लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी नहीं यूज करते, आपको पता है. लोग क्या करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रांसफर करते हैं, एनईएफटी वगैरह वगैरह. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या आ गया, ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज ए मनी मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू variety of means like mobile phones, tablet, right, smart cards, computer, etc.
It is backed by central bank. Electronic money is used for the purchase transactions and transactions globally. Digital wallets, example, Google Pay, Phone Pay, फोन पे की स्पेलिंग देखो, आई डोंट नो वही है क्या, गूगल पे, फोन पे, देन आपका फेमस है वो क्या था, अभी इतना यूज नहीं होता वो, पेटीएम, पेटीएम, देयर इज एयरटेल मनी, जियो मनी, ओला मनी, देखो ना कितने सारे आ गए, अमेजोन मनी, अमेजोन के भी होते हैं। आप मोबाइल के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हो? टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव स्टॉप यूजिंग द कार्ड्स। मैं तो कार्ड यूज ही नहीं करता, आई डोंट कैरी। जो भी है या तो गूगल पे, फोन पे, दोनों इजी है। मैं पहले पेटीएम यूज करता था, पेटीएम भी मैंने बंद कर दिया, बिकॉज पेटीएम में पहले पैसे ट्रांसफर करो और फिर वहां से ट्रांसफर होता था, सो इट यूज टू टेक टाइम। तो आजकल तो सब गूगल पे या फोन पे से चीजें होती है, और टू ए सर्टेन लिमिट। और आजकल आप, आई वॉज सरप्राइज, मैं मेरे अभी दिवाली के टाइम, दिवाली के बाद में जब मेरे घर गांव गया था, वहां पे पेट्रोल पंप पे, एकदम स्मॉल विलेज है, वहां पे भी गूगल पे, फोन पे था। आई वॉज सरप्राइज, अच्छा लगा मुझे। मैंने उसको पूछा, यार कैश ही देनी या कोई है कार्ड, या स्कैन कर सकता हो? बोला सर स्कैन कर सकते हो। तो इतना कॉमन हो चुका है, लोगों को भी वो समझता है। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी, कितना इजी हो गया पैसे ट्रांसफर करना, चेक देने की जरूरत नहीं, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी करने की जरूरत नहीं, कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं। कार्ड भी आजकल पता है ना, कॉन्टैक्टलेस कार्ड आए, कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, मतलब आपको स्वैप नहीं करना होता है, आपको खाली सामने रखना होता है, वो अपने आप पेमेंट होता है, जैसे टोल नाका पे होता है। जब आपका टोल के लिए आपको कार्ड स्वैप नहीं करना होता है, वो स्कैन कर लेते हैं आपका कार्ड और आपके अकाउंट में से माइनस होता है। सिमिलरली आजकल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बने, आपको स्वैप नहीं करने, खाली मशीन के सामने रखना है, दिखाना है उसको मशीन को, अपने आप स्वैप हो जाता है। सो दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो द इवोल्यूशन देखो कैसे कैसे इवोल्यूशन है उसका। फर्स्ट, सबसे पहले आया एनिमल मनी। एनिमल्स विच आर कॉमन इन दैट एरिया आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर आगे कमोडिटी को उन्होंने यूज किया। एनिमल्स के केस में डिविजिबिलिटी का इश्यू था, इसलिए कमोडिटी पे आ गए। जो भी कमोडिटी उस एरिया में कॉमन है उसको उन्होंने मनी बोल दिया। इट विल बी यूज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बट उसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम आ गया, इसलिए वो मेटल्स में गए, मेटलिक मनी यूज होने लगा। मेटल्स, जो भी मेटल कॉमन है उसको उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। सब मेटल्स आर प्रीसियस, सब मेटल्स आर चीपर, बट उन्होंने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। बट मेटल्स में प्रॉब्लम है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको स्टोर भी कर सकते हैं, बट यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। इसलिए मेटल एज सच की जगह मेटलिक कॉइन्स को लाया गया, और मेटलिक कॉइन्स को क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने उसकी वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दिया। So there are two types of coins, standard coins, full bodied coins और token coins। जो यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड में होते हैं टोकन कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद आ गया, उसके बाद आ गया मेटल्स में प्रॉब्लम आने लगा, स्टोरेज का प्रॉब्लम आने लगा, बिकॉज इतने मेटलिक कॉइन्स कहाँ पे स्टोर करेंगे। तो उन्होंने उससे एक ढूंढ लिया कि पेपर मनी और करेंसी नोट्स। पेपर मनी, इवन मेटल्स आर नॉट दैट मच इजीली अवेलेबल, तो पेपर इज इजीली अवेलेबल, उन्होंने पेपर मनी यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो पेपर मनी यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। पेपर मनी को भी उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। पेपर मनी भी स्टोर करना है, कैरी करना वाज रिस्की। नोट घूम गई तो गई, बराबर, कॉइन्स घूम गया तो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, पेपर मनी की जगह क्रेडिट मनी कंसेप्ट लेके आ गए। मतलब आप बैंक में पैसे रखो, बाय मींस ऑफ चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट यू कैन ट्रांसफर द मनी। आप आरटीजीएस कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, आप अलग अलग तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। क्रेडिट मनी, डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक है, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट से आप ट्रांसफर कर सकते हो। आ गया आपका क्रेडिट मनी और बैंक मनी। फिर उस बैंक वालों ने नया इन्वेंशन लाया, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, जिसको बोला गया प्लास्टिक मनी। You can swipe the debit card and credit card and you can transfer the money.
एंड उससे भी एक एडवांस आ गया, जैसे मोबाइल्स इतने कॉमन हो गए, स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सबके पास आ गए, अब आ गया है एप्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मनी आप कंप्यूटर के थ्रू, आप जनरली मोबाइल के थ्रू, लोग दे ट्रांसफर द मनी फ्रॉम one person to another person, from one account to another account. So this is evolution of money. Then comes the qualities of money. Try to understand, what do you mean by qualities of money? Anything. Suppose this mouse can be used as a money. It can be if this satisfies these qualities. Can this mobile can be used as a money, or mobile as such can be used as money? If this satisfies these qualities, then only money. Anything to be regarded as a money or to be accepted as a money must have these qualities. जैसे हम बोलते हैं कोई लीडर होता है, उसमें कोई क्वालिटीज होनी चाहिए तो ही वो लीडर है। वैसे अगर किसी चीज को हमें मनी बोलना है, उसमें ये क्वालिटीज होना मैंडेटरी है। फर्स्ट क्वालिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एवरीवन शुड एक्सेप्ट दैट एज ए मनी। सबने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे करेंसी नोट्स सब एक्सेप्ट करते, कॉइन सब एक्सेप्ट करते, गूगल पे, फोन पे हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। देयर आर मेनी शॉप्स इवन इन पुणे which do not accept फोन पे एंड गूगल पे, और दे डू नॉट एक्सेप्ट चेक्स। है ऐसे भी, मे बी बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी, दे डोंट वांट टू शो द ट्रांजैक्शंस। बट करेंसी नोट्स को कोई नहीं बोलता, कॉइन्स को कोई नहीं बोलता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिस भी चीज को आपको मनी बोलना है, उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी उसने नहीं बोलना चाहिए। Anything which is used as a money must be easily accepted by all for exchange purpose. Acceptability होनी चाहिए, वो divisible होना चाहिए। Money should be easily divisible into smaller denominations to facilitate even small transaction. Divisible होना चाहिए। Like आपके पास 1 रुपए की नोट होती है, 2 रुपए की होती है, राइट, 5 रुपए की नोट है। आज उतने वो इजीली अवेलेबल नहीं, बिकॉज कॉइन्स होते हैं उनके, बट नोट्स थी। 10 रुपए की है, 20 रुपीज की है, 50 रुपीज की है, 100 रुपीज, 200, राइट। आपने देखा होगा, राइट, 500 की नहीं है, बाकी नोट्स है। सो मैं आपको वही बोल रहा हूं, 2000 तक की नोट्स है। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, राइट, छोटे छोटे इसमें हमने डिवाइड करके रखे, स्मॉलर डिनोमिनेशंस में डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। मनी शुड बी इजीली डिविजिबल into smaller denominations to facilitate even small transactions. ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए। करेंसी नोट्स आर ड्यूरेबल, मेटलिक कॉइन्स आर मोर ड्यूरेबल। कॉइन्स तो बहुत साल चलते हैं, ड्यूरेबल होने चाहिए। मतलब अगर हमने आज 10,000 रुपए कॉइन्स के रूप में अगर हमारे कबर्ड में रखा है, तो 10 साल के बाद भी वैसे रहेंगे। करेंसी नोट्स वैसे ही रहेंगे, वो ड्यूरेबल होने चाहिए, नॉट लाइक पेरिशेबल गुड्स। मनी शुड also possess the characteristics of durability. Currency notes and the coins are being used repetitively and shall continue to do so for years together on account of durability. वो नोट मार्केट में घूमती रहती है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो ड्यूरेबल है, वो कॉइन ड्यूरेबल है। सो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, कॉग्निजिबिलिटी होनी चाहिए। कॉग्निजिबिलिटी मतलब, राइट, आइडेंटिफाइबल चाहिए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, उसमें वो अंधा था। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, लेट मी, वो उस मूवी में वो अंधा दिखाया था, एंड इट वाज अ रिवेंज मूवी, रिलेटेड टू रिवेंज। जिसको याद है, उसकी वो मूवी थी ऋतिक रोशन की, 2-3 साल पहले आई थी, या काबिल। काबिल बोल के मूवी थी, परफेक्ट। उसमें अगर आप एक इंसिडेंट देखोगे ना, वो क्या करता है, ऋतिक रोशन ऑटो से उतरता है एंड उसको कुछ तो 20 रुपए देने होते हैं। मतलब ऑटो ड्राइवर इज सपोज टू पे 20 रुपीज, बट ऑटो ड्राइवर को लगता है अंधा है, उसको 10 रुपए देता है, चूना लगाने का ट्राई करता है। वो उसको चेक करता है, बोलते हैं आपने 10 रुपए की नोट दी, 20 की नहीं। ये अंधा होके भी उसने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि ये 10 रुपए की नोट है, 20 की नहीं? बिकॉज हर नोट, राइट, एक कॉग्निजिबिलिटी मतलब एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। वो समझ के आप समझ सकते हो नोट कितने रुपए की है। तो ऋतिक रोशन उसको आइडेंटिफाई करता है उस नोट को कि ये 10 रुपए की, 20 की नहीं। तो हर नोट, राइट, वो
जब किसी चीज को करेंसी बोलते हो, किसी चीज को मनी बोलते हो, उसमें कॉग्निजिबिलिटी कंसेप्ट होनी चाहिए, मतलब वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। वही है कॉग्निजिबिलिटी, मतलब मनी मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, जो अंधा है उसको भी समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इट शुड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क्स सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन बाय रिसीविंग पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये कॉग्निजिबिलिटी होनी चाहिए। हर नोट में अलग कुछ तो फीचर्स होते हैं, हम हमें सब दिखता वगैरह तो हम इतना नहीं सोचते, बट वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करते थे कभी सोचना। जिनको दिखता नहीं वो करेक्ट नोट आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों? बिकॉज उसमें कोई ऐसे मार्क्स होते हैं जो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नोट बनाते टाइम उनको भी ध्यान में रख के नोट बनाई जाती है कि वो लोग भी नोट्स यूज करने वाले हैं, तो वो कैसे रहेंगे, कॉइन्स यूज करने वाले हैं, उसको कैसे हम वो लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे मार्क्स हम यूज करेंगे, क्या फीचर्स हम यूज करेंगे, सो दैट एवरी वन कैन यूज। ठीक है, सो दैट इज ड्यूरेबिलिटी। एंड देन कॉग्निजिबिलिटी अभी डिस्कस किया। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जा सकते हो, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। Transferability from one location to another location is called as portability. It should be easy to carry from one location to another location without any difficulty, expense or inconvenience. Currency notes are easily portable. Right? होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर मैं 10 रुपए की नोट देख रहा हूं तो हर 10 रुपए की नोट सेम होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल 20 रुपीज की नोट देख रहा हूं, हर 20 रुपीज की नोट सेम होनी चाहिए। 2000 की हर नोट सेम होनी चाहिए। 1 रुपए का हर कॉइन सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी होनी चाहिए, तो ही वो कॉग्निजिबिलिटी मिलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मनी ऑफ ए पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस और हैव आइडेंटिकल फीचर्स इन इट। एंड देन स्टेबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट मीन बाय स्टेबिलिटी होनी चाहिए? द वैल्यू ऑफ द मनी शुड रिमेन स्टेबल। लाइक एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 रुपए का कॉइन है, आज उसकी वैल्यू 1 रुपए है, 10 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 1 रुपए, अगर वो चलन में रहता है, अगर वो सर्कुलेशन में रहता है तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब 10 रुपए की नोट आज भी 10 रुपए की है, 2 साल के बाद भी 10 रुपए की, 2 साल के पहले भी वो 10 रुपए की थी। उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, स्टेबल है। हाँ, उसकी परचेसिंग पावर चेंज हो सकती है। मतलब उसी 10 रुपए के नोट से आप पहले 10 चॉकलेट परचेस कर सकते थे, आज आप 5 ही चॉकलेट परचेस करते हो, कल जाके आप 3 ही चॉकलेट परचेस करोगे। इन्फ्लेशन की वजह से the number of chocolates suppose you can buy with that 10 rupees is changing, but the value is still 10 rupees. आप कितने यूनिट्स परचेस करते हो उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। ध्यान देना, अगर when I was right going to school, तब 1 रुपए में मुझे 4 चॉकलेट्स मिलते थे। 1 रुपए में 4 चॉकलेट्स मिलते थे, तो मैं बोलता था 1 रुपए की परचेसिंग पावर 4 चॉकलेट्स है। वही चॉकलेट्स अगर आज मैं लेने जाता हूं, मुझे 1 रुपए में 2 ही चॉकलेट मिलता है, एक ही चॉकलेट मिलता है, तब मैं बोलता हूं 1 रुपए की परचेसिंग पावर इज डिक्रीज टू 1 चॉकलेट। 1 रुपए से मैं 4 चॉकलेट लेता था, 1 रुपए से अब एक ही चॉकलेट लेता हूं। इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। पहले वो चॉकलेट 25 पैसे का था, आज वो 1 रुपए का हो गया। तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी हैज चेंज्ड, बट उस कॉइन की वैल्यू 1 रुपए ही है। उसको 2 रुपए नहीं बोलते, आप उसको 3 रुपए नहीं बोलते। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द मनी एज सच। सो 1 रुपए 1 साल पहले भी 1 रुपए का था, आज भी 1 रुपए का है, कल भी 1 रुपए का ही रहेगा। वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके वैल्यू में। मनी शुड हैव ए स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। मैं परचेसिंग पावर की नहीं बात कर रहा, मैं मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहा हूं। इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? दिस गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज फॉर अ फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब जब मैंने बोला कि बार्टर ट्रांजैक्शन में डेफर्ड पेमेंट्स करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो चीजें हम एक्सचेंज करने वाले उनका शेप चेंज होता है, उनका नेचर चेंज होता है, उनका क्वालिटी चेंज होता है, बिकॉज गुड्स कीप्स ऑन चेंजिंग, द एनिमल्स कीप्स ऑन चेंजिंग। बट अगर मेटलिक कॉइन्स और द करेंसी नोट्स डू नॉट चेंज, तो यू कैन इजीली यूज देम टू मेक अ फ्यूचर पेमेंट्स। सो अगर कोई भी चीज, ध्यान देना, एनीथिंग विच सेटिस्फाइज दिस विच क्वालिटीज विल बी ट्रीटेड एज मनी। अगर आप कोई चीज ढूंढ के ला सकते हो जिसमें ये सब चीजें प्रेजेंट रहे, दैट विल बी एक्सेप्टेड एज ए मनी। सो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एवरीवन शुड एक्सेप्ट इट। डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, राइट?
ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, कॉग्निजिबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, homogeneity and stability. These are the qualities of a good money. Qualities of a good money. Like animals में ये सब qualities नहीं थे, इसलिए animal money was rejected. Commodity money में भी ये सब qualities नहीं थे, इसलिए reject हुआ. Try to understand. ये पहले वाले animal money, commodity money, metallic money, इनको क्यों reject किया गया? Because इनमें problem ये सब चीजें थी, ये सब present नहीं थे. But latter जो है, इनमें ये चीजें प्रेजेंट है, इसलिए उनको आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं. मेटलिक मनी आज भी हम यूज करते हैं, पेपर मनी आज भी यूज करते हैं, क्रेडिट मनी भी यूज करते हैं, प्लास्टिक मनी यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी यूज होता है, बिकॉज दीज हैव दिस क्वालिटीज, ऑल द क्वालिटीज प्रेजेंट. ठीक है. देन द लास्ट पार्ट इज ए फंक्शंस ऑफ द मनी. देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ मनी. Functions of money. There are three functions of money. Primary function are two. Secondary function and third functions are the contingent functions. This is for 8 marks. Contingent. ये पहले 12th में चैप्टर था ना, ये 8 मार्क्स के लिए पूछते थे बोर्ड्स में, ये बहुत बार रिपीट हुआ था. There are three functions of the money: primary function, secondary function and contingent function. उसमें से I will take primary functions first. ध्यान देना, primary function बहुत सिंपल है. Primary function is the medium of exchange and the measure of value or unit of account. बहुत सिंपल है प्राइमरी फंक्शन. कोई भी हम मनी क्या बोलते हैं? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो फर्स्ट फंक्शन, वेरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी, दैट इट शुड बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द ट्रांजैक्शंस. अगर मुझे कोई गुड्स एंड सर्विस परचेस करनी है या सेल करनी है, इट शुड बी अगेंस्ट द मनी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी is that it should serve as a medium of exchange, to serve as a medium of exchange. Any commodity can be purchased or sold for money. So medium of exchange is primary. And second, measure of value. All the goods and services will be measured in that thing. So India में everything is measured in terms of rupees. वो अगर आप यूएस में जाते हो, everything is measured in terms of dollars. Try to understand. मेजर होता है हर चीज. मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की वैल्यू, हर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उसमें मेजर होती है, मेजर ऑफ वैल्यू. और यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसमें मेजर किए जाते हैं. लाइक इंडिया में ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इन रूपी, यूएस में ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज इन डॉलर्स. ठीक है. वही प्राइस इज, व्हाट इज द प्राइस? कोई चीज की प्राइस क्या होती है? इसकी प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, उसको प्राइस बोलते हैं. राइट. Price is the value of the commodity or a service expressed in terms of money. Price is value expressed in terms of money. इसकी वैल्यू 800 रुपए, मतलब इस 800 रुपए इसकी वैल्यू मैंने मनी में वैल्यू किया है, उसको प्राइस बोलते हैं. मोबाइल की वैल्यू 30,000 है, 30,000 इन रुपीज, वो प्राइस हो गई. सो वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज अ प्राइस. Money enables to compare the prices of the commodities, right? हम अलग अलग commodities की prices compare कर सकते हैं because of money. Then different currencies are used to express value of the commodity in different countries, like rupee in India, dollar in USA, etc., pound in UK, yen in Japan. हर country की अलग अलग currencies है, ठीक है, जिसको हम money बोलते हैं. Income and expenditure of all kinds, assets and liabilities are stated in terms of money as unit of account. Books of accounts are maintained in the money. India में rupee, US में dollar, like that. So the two primary functions: first, medium of exchange, and second, store, right, measure of value.
of goods and services. Value of goods and services. So these are two primary functions. Medium of exchange and measure of value are the two primary functions. ठीक है, कल हम ऐसे ही लेक्चर लेंगे 45 मिनट्स का एंड वी विल कंप्लीट रिमेनिंग सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटीजेंट फंक्शन. कल खत्म हो जाएंगे, तो कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इस वीक में मैं और एक लेक्चर लूंगा एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, थैंक यू.